آج ہم بھوٹانی صاحب کا شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ اس مرحلے میں کھڑا ہو رہا ہے، اور پورا پاکستان کا یونائٹڈ اپوزیشن بھوٹانی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں، اور ہم تھوڑا چاہیں گے کہ خود آپ کے سامنے اپنا موقف پیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح اجازت؟ بسم اللہ۔ میں ایم این اے منتخب ہوا ہوں انڈیپینڈنٹ لسبیلا گوادر سے۔ 3.5 سال سرکار کے ساتھ تھا، اور اب 3.5 سال رہنے کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھائیاں برائیاں یا کیا، ٹھیک ہم چلے، میں بھی ان کو ووٹ دیتا رہا، وہ بھی میرے ساتھ ٹھیک چلے، لیکن اب جو پالیٹکس ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ الیکشن آ رہا ہے تو ہمارے لیے کیا چیزیں سود مند ہیں۔ ظاہر ہر ایک نے اپنا الیکشن کی طرف نظر رکھنی ہے، تو زرداری صاحب تو مہربان ہیں، ہمارا 42 سال کا تعلق ہے اور بہت احسانات ہیں زرداری صاحب کے میرے اوپر۔ بلاول صاحب ان کے فرزند ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں۔ اختر مینگل صاحب ہمارا ایک گھر ہے، انہوں نے آج کہا چلتے ہیں زرداری صاحب کے پاس اعلان کرتے ہیں، میں نے کہا جی میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں فارملی بھی کر لیتے ہیں۔ مولانا واسع صاحب، حیدری صاحب، سردار ایاز صاحب، ہم سب ساتھ آئے، تو میں اب زرداری صاحب کے ساتھ ہوں۔ اپوزیشن نہیں، میرے لیے زرداری صاحب کافی، جہاں وہ جائیں گے میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ ہاں، میری اپوزیشن میں ہے تو اپوزیشن میں ہوں، صحیح بتا دیتا ہوں نا۔ اختر اور زرداری صاحب کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور جہاں وہ مجھے لے جائیں گے میں چلا جاؤں گا۔ اور ایک بات میں بتاؤں زرداری صاحب، آپ کی اجازت سے، میری الیکشن میں ڈاکٹر مالک بلوچ جو نیشنل پارٹی کے ہیں، امیر حاصل بزن جو مرحوم، ان کا بڑا کردار تھا، تو انہوں نے بھی مجھے، آج صبح میری ڈاکٹر مالک سے بات ہوئی، انہوں نے بھی زرداری صاحب آپ کو سلام بھیجے ہیں، اور مجھے کہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے ان کی جماعت، تو مجھے کہا ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ جائیں، تو وہ بھی میں آپ کو سر بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے کہا ہے۔ اور اختر جان اور ہم تو ایک گھر ہے، ہمارے ہاں وہ ایم این اے والا رشتہ نہیں ہے، ایک گھر ہے۔ زرداری صاحب کا حکم، ہم حاضر ہو گئے، اس کی ضرورت نہیں تھی، ویسے ہی میں نے ان کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جی میری وجہ سے آپ کا کوئی معاملہ نہیں رکے گا، لیکن آج چلے اوپنلی ہو گیا آپ کے تھرو، اور بہت شکریہ بلاول صاحب، آپ نے عزت دی، تھینک یو ویری مچ۔ مینگو صاحب آپ میڈیا حضرات کا میں شکر گزار ہوں، اور اصل بھوٹانی صاحب نے جس کا ذکر کیا تھا وہ کسی سے تکلیف کی بات نہیں ہے۔ جب ہم پی ٹی آئی کے جالی بھی تھے تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات سے، جب ہم اپوزیشن میں جا کے بیٹھے تو ان کے ساتھ ایوان میں بھی ہماری بات چیت چلتی رہتی تھی، اور کئی دنوں سے ہماری کوشش تھی، تو انہوں نے ذہنی طور پر تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپوزیشن کو جوائن کریں گے،
اور باقاعدہ جس انداز میں اس نے آپ لوگوں کے سامنے اپنی اپوزیشن کے ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں جو انہوں نے اپنے الفاظوں میں مجھے یاد کیا، اور اپنی پارٹی کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے ان کو اپوزیشن کے اس کیمپ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور جس طرح لیکن دن گزرتے جا رہے ہیں، حکومت نے جتنے اس کو ہمارے اس عدم اعتماد کی تحریک کو ڈیلے کرنا چاہ رہا ہے، اور اس ڈیلے کی وجہ سے جو ہے نقصانات خود حکومت اٹھا رہی ہے، اور جتنا اس نے ڈیلے کیا اسی طرف سے جو ہے لوگ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے یا ان کے اس غیر آئینی اقدام کی وجہ سے لوگ اس طرف آ رہے ہیں. تو میں ایک بار پھر اسلم بھوتانی صاحب کو اپوزیشن کے اس کیمپ میں آمد پر جو خوش آمدید کرتا ہوں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اپوزیشن کے لیے خوشی کا دن ہے کہ جناب اسلم بھوتانی صاحب جو اسپیکر بھی رہے اور بہت کچھ رہے بلوچستان میں، اس وقت ایم ایل اے ہیں، اور انہوں نے جناب زرداری صاحب کی موجودگی میں اپوزیشن کے عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. میں اپنی جماعت کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے خیر کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب عمران کو مستعفی ہونا چاہیے. وہ اکثریت کھو بیٹھے ہیں، اکثریت اس کے پاس نہیں رہی. ایسے حالات میں زبردستی ملک پر مسلط ہونا، قوم پر مسلط ہونا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اور اسی میں سوراخ بڑھ رہے ہیں. شاذن بگٹی نے پیداوار کیا، کل پھر بلوچستان عوامی پارٹی نے، پھر آج تابوت میں اسلم بھوتانی نے ایک ایسا کیل ٹھوکا ہے کہ انشاءاللہ العظیم اب وہ جام پر نہیں ہو سکے گا. تو میری درخواست ہے کہ عمران خان استعفیٰ دے دیں اور گھر چلے جائیں. بہت بہت شکریہ. ایک منٹ ایاز صادق سردار ایاز صادق صاحب نے بات کی. یہ مائک آ گیا. میرا مائک نہیں، چائنا سے مائک. اچھا آپ ادھر آ جائیں. نہیں ٹھیک ہے سب بیٹھ میں آگے ہو جاتا ہوں چیئر اور آگے کرتا ہوں. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جوائنٹ اپوزیشن کی طرح جس طرح میرے سینئر قائدین نے بات کی ہے، اسلم بھوتانی صاحب کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں. ایک چیز غور کرنے والی ہے کہ دنوں کے اقتدار کے لیے لوگ اپوزیشن کو چھوڑ کے اور حکومت میں چلے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ حکومت کو چھوڑ کے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے حکومت کو چھوڑ کے لوگ اپوزیشن میں جا رہے ہیں؟ اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں. شاذین بگٹی صاحب نے بھی بات کی، باب پارٹی نے بھی کل اعلان کر دیا، اور آج اسلم بھوتانی صاحب میں بھی. اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں، وہ جو فیصلہ کر چکے ہیں یا جو بات کرتے ہیں، اپنے تحفظات کی بات کرتے ہیں، اس کی وجوہات نہ صرف انکمپٹنس ہے بلکہ کرپشن بھی ہے، گڈ گورننس بھی ہے، اور سب سے زیادہ ہے عمران خان صاحب کے رویے کی اپنے ممبران سے اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ. اور ہم انشاءاللہ آپ کو جس دن ووٹ ہوگا، حیران کن نمبر آپ کے سامنے آئے گا جو
हुकूमत के खिलाफ वोट करेंगे, हैरान कन नंबर आएगा आपके खिलाफ। ये मैं दावा भी कर रहा हूँ और बाकी जॉइंट अपोजिशन के कायदीन के सामने कह रहा हूँ कि वो मेरे से बेहतर जानते हैं कि नंबर और तादाद कितनी बड़ी होगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जा रही है तादाद। और वजह यही है कि उन्होंने फैसला ये कर लिया कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है वो शायद कभी भी पाकिस्तान की तारीख में कोई जमात, बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन वो नुकसान नहीं पहुंचा सके जो इमरान खान साहब ने पहुंचाया है। और लोग पाकिस्तान का सोचते हैं, पाकिस्तान की मईशत का सोचते हैं, और खुदा न खास्ता बैंक रप्सी से डूबने के लिए जो इमरान खान जिस तरफ ले गए, उसके इन चीज़ों की वजह से और भी बेशुमार वजूहात हैं, वो आप सब जानते हैं। महंगाई है, महंगाई मार्च भी आपने देख ली, बेरोज़गारी है और बेचैनी है लोगों में, और हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं कि हमने किस तरह हर अपने दोस्त को नाराज़ कर लिया, चूँकि इमरान खान साहब मुल्क का नहीं सोचते, अपनी सियासत और अपने इक़्तिदार का सोच रहे हैं। तो मैं असलम बोतानी साहब को और बाकी दोस्तों को जो कल आए और शाहज़ैन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इंशाअल्लाह चंद दिनों में आप और अच्छे नताइज देखेंगे। शुक्रिया जी। सती साहब साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि काफ लीग के साथ आपके बड़े अच्छे मामला चल रहे थे और बहुत सारी मुलाकातें हो रही थी और अपोजिशन बड़ी पुरुमीद थी। ऐसा क्या हुआ कि ओवर द नाइट वो चले गए? और दूसरा, क्या किसी धड़े के साथ अभी भी आपकी एमक्यूएम के किसी रुकन पीएमएलक्यू के किसी अभी वो बंदे के साथ आपका राब्ता है? बेटा, सियासी लोगों का रास्ता तो रहता ही है। हम कोशिश कर रहे थे, जिस तरह मैंने पहले दिन कहा कि मुल्क जिस हालात में है इसमें हम सब मिलके मुल्क को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी और बचाना पड़ेगा। तो उस सोच से मैंने इनको भी दावत दी थी और काफी वो तैयार थे, आ गए थे। फिर मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आई। ये तो उनसे पूछा जाए कि वो रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। ऐसा है कि एक दो चैनल में अब इस तरह की लाजानी गुफ्तगू की गई कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से कुछ नाराजगी का इजहार किया कि आपके रवैये की वजह से मुल्क साहब गई है। मैं ये नहीं कहती सही है, बल्कि किस तरह का एक दिया गया था। दूसरा ये कि बलोचिस्तान की माशाल्लाह 3 पार्टियां आपके साथ आ गई हैं, 3 लोग आ गए बलोचिस्तान 3 पार्टी के लोग। लेकिन अब सिंध के एमकेएम और शहरी सिंध के और पंजाब से जो बाकी है तो मजीद कब तक आ जाएगी? सर, मैं आपसे अर्ज करूं कि उनसे भी डायलॉग है, उनने भी हमसे वादे किए हुए हैं। उस पर डायलॉग पे सीएम सिंध और सीएम और सिंध की कैबिनेट आई हुई है, उनसे डायलॉग कर रही है। इंशाल्लाह वहाँ से भी आप कुछ अच्छी खबर है। एजाज मेरे एक जरदारी साहब से सवाल है आपसे और एक इमरान साहब आपसे है। आपसे तो ये सवाल है कि आज फिर हुकूमत ने एक खास तौर पर आपको टारगेट करके ये इल्जाम लगाया है कि वो खत आया है और वो खत में ये साबित हो गया है कि आप लोग बैरूनी कुव्वतों के इशारों और पैसों पर खेल रहे हैं। आप इसका जवाब दे दीजिए। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मेरा सवाल ये है कि ऐसे क्या मसाइल हैं कि एमकेएम के साथ मामला जो लग रहा था एक हफ्ता पहले के तकरीबन तय हो गए हैं, वो फिर लटक गए हैं और आपको दोबारा लिंगरवाद करना पड़ा है? क्या उनके मुतालबात ऐसे हैं कि आपको पूरे करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं? जहाँ तक इमरान खान की झूठे इल्ज़ामात हैं और ये ख़त की बात है, पूरा अपोजिशन ने चैलेंज किया, हम भी चैलेंज करते हैं कि कौम के सामने लेकर आए, साबित करो। 3 साल से अब पाकिस्तान के अवाम पहचान चुके हैं कि खान साहब का आदत है कि वो झूठे इल्ज़ामात लगाएं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, मैं रिएटरेट करना चाहूँगा कि यूनाइटेड अपोजिशन का तादाद
अदम एतमाद जमा होते हुए पूरे थे। आज यूनाइटेड ऑपोजिशन का तादाद उससे भी ज्यादा है। हमारा ये डिजायर था और है कि हम अपना तादाद के साथ साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं इनको इसलिए साथ लेके चले कि आगे जाके जो रिफॉर्म्स हैं, जो मसाइल हैं, उनका हल निकालने के लिए हम समझते हैं कंसेंसस की ज़रूरत है और सबसे मिलके बात करने की ज़रूरत है। जहाँ तक MQM की बात है, वहाँ मैंने बार बार कहा, आज फिर आपके सामने कह रहा हूँ, ऐसा उनका एक डिमांड नहीं है जो मैंने 2 हफ्ता पहले इनकार किया जब वो पहली बार हमारे सामने आए, या आज तक मैं उनके कोई ना डिमांड पे इनकार कर रहा हूँ। और साथ साथ ये भी इस पे भी जोर दे रहा हूँ कि हर सूरत में और हर हाल में पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए, कराची को संभालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि हमने MQM के साथ म्यूचुअल काउंट ढूंढना है, वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना है फॉर द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू। सर, मेरा आपसे सवाल है कि मुतहदा अपोजिशन का अब पंजाब में वज़ीर-ए-आला कौन होगा? क्या परवेज़ इलाही अब भी अपोजिशन की तरफ से वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए उनके लिए दरवाजे खुले हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये अब देर हो चुकी है और ये हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें, और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास हैं। तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्जी की चेंज। एक मिनट शाकिर, जिन जमातों के साथ आप इंगेज हैं, जिनको लेकर आप तरीक़त में कामयाब बनाना चाह रही हैं, उनके लिए तस्वीर ये आम है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जमातें इशारों पे चलती हैं। तो मसला ये है कि जब एस्टेब्लिशमेंट गैर जानकार है तो ये मामला ये उलझ क्यों गया है, ये आसान क्यों नहीं हो पा रहा? कहीं एस्टेब्लिशमेंट डबल गेम तो नहीं कर रही कि कुछ को इधर इशारा, कुछ को इधर इशारा, हुकूमत में जा रहा है, कोई अपोजिशन? मसला कहाँ पे फंसा हुआ है? वो कहते हैं ना, डेविल इज इन द डिटेल्स। तो डिटेल्स में बातें हो रही हैं, डिटेल्स में कानून साजी होनी है, तो उस पे डायलॉग शुरू हो रहा है। हमेशा ही होती है। आप समझते हैं कि वो नाकाम हुई और आप एक आईनी और जमहूरी तरीक़ाकार अपना के तहरीक आज़म बात लाए, तो अपोजिशन के पास क्या प्लान है? मसाइल भी हैं, इन मसाइल का हल कैसे निकलेगा? इंतखाबात भी हो रहे हैं, तो प्लान क्या है अपोजिशन का? अगर हुकूमत को आप घर भेज भी देते हैं तो आपको उम्मीद है कि तरीके में बात कामयाब हुई, तो आपके पास क्या प्लान है कि मसाइल हल हो और आप आगे भी बढ़ें? इंशाल्लाह हमने पहले भी जब इक़्तिदार संभाला था, जब मुशर्रफ साहब थे और वो चले गए, तो उनके बाद भी हमने संभाल के वो भी इसी नज पे ले आया था, इसी जगह पे हम पहुंचे हुए थे। आपको याद होगा कि उस वक्त भी वीट की इंपोर्ट की बात हुई थी, वीट इंपोर्ट हो रहा था, शुगर इंपोर्ट हो रही थी, लोगों के पास खाने को नहीं था, लोगों की तनख्वाहों के इश्यूज थे, हर किस्म के मसले वो हमने सॉल्व किए थे। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी बैठ के और इनफैक्ट साथ मिल बैठ के हम आइंदा का रास्ता भी बना लेंगे। खालिद साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इस तरीके अपने समाज को यहाँ तक पहुँचाने में आपका मरकजी किरदार है। बिलावल का मरकजी किरदार, तरीके इंसाफ के काफी लोग आपने रजा किए, इसके अलावा बाप पार्टी की आ गई, आज बसानी साहब की आ गई। क्या आप इतबार कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये लोग आपके साथ रहेंगे? क्योंकि 3.5 साल ये लोग गवर्नमेंट के साथ रहे, तो क्या आप सोचते हैं कि फ्यूचर में ये आपके हमनुमा बनेंगे? सर, मैं समझता हूँ इन सबको एहसास है कि पाकिस्तान के साथ रहना है, पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाना है, उसमें हम सबका भला है। ये भी बचते हैं, मैं भी बचता हूँ, हमारी आने वाली नस्लें भी बचती हैं। तो ये सब मेरे साथ जो
दोस्त आ गए हैं। आज तक मैंने भूटानी साहब को पहले नहीं कहा कि आप मेरी पार्टी में आ जाएं, इसलिए कि मैं समझता हूँ सबके हालात, और इस वक्त जब मुझे ज़रूरत है तब मैंने उनकी तरफ नज़र दौड़ाई तो उनने मेरे वालेकुम सलाम करके और कहा कि मैं आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह के काफ़ी दोस्त हैं जो पाकिस्तान का सोच रहे हैं। कुछ दोस्त सिर्फ पावर की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं। पावर तो आती जाती चीज़ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए। जुल्फिकार एक मिनट आ रहे हैं। जुल्फिकार साहब आपसे एक सवाल है। दादा साहब ये सवाल मैंने बिलावल साहब से किया था कि आप जब हुकूमत में आए थे तो आपने बलूचिस्तान से माफ़ी मांगी थी और बलूचिस्तान पैकेज का भी ऐलान किया था। आज की सूरत हाल में बलूचिस्तान खुल्लम खुला आपके साथ खड़ा है, तो आप इस वक्त बलूचिस्तान को क्या कमिटमेंट यहाँ पे दे रहे हो? बिलावल साहब आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंट करे स्पीकर के हवाले से कि हो सकता है मदाखलत हो, तो आप अब जो कदम एतमाद की तारीख टेकअप हो चुकी है तो आप समझ रहे हैं कि अब इंटरवेंट की जरूरत नहीं है? बलूचिस्तान के साथ और हमेशा के लिए, जैसे हर सूबा के लिए हम सोचते हैं, हम वफाक के लिए सोचते हैं, और हम सब का यही कोशिश होगा कि हम हर सूबा को उनका हक पहुंचाएं। सदर ज़रदारी ने हमेशा अपने दौर में ये एफर्ट की, और आने वाले वक्तों में हमारे यही ख्याल होगा, यही सोच होगा। लेकिन जो किरदार मेरा ख्याल में अदम एतमाद में बलूचिस्तान के साथी ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहे हैं, और जो पहला और जो सबसे पहले और जो बहादुरी दिखा के सामने आ रहे हैं वो सारे भूटानी साहब, कल बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी, अवामी पार्टी एंड JWP। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। और पाकिस्तान, जैसे सदर ज़रदारी साहब ने कल कहा कि अगर बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान है, बलूचिस्तान साथ है तो पाकिस्तान साथ है, बलूचिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत की बात है, मेरा ख्याल में जहाँ एक केस अब साथ साथ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और हर दूसरा दिन आला अदलिया का बेंच बैठ रहा है, तो अब स्पीकर साहब ऐसे सोचेगा भी नहीं कि वो कोई गैर आईनी काम करे, कोई धांधली करने की कोशिश करे। इसलिए हमारा आला अदलिया बैठा हुआ है, वो पार्लियामान के साथ साथ देख रहे हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया अदम एतमाद में धांधली नहीं होने देंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत का और आइन का ख्याल रखने वाले और पासदारी का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कि जो जिम्मेदारी हैं वो आला अदलिया है, और हमारा उम्मीद है वो अपना जिम्मेदारी पे खुद पूरा उतरेंगे। मैं सर एक मिनट, जुल्फ़िकार देखें, हम और आप कोयटा में इकट्ठे थे जब मैं स्पीकर था। आपने सवाल किया कि जरदारी साहब ने बलूचिस्तान के लिए क्या किया है। तो दिया था ना 100% NFC, 102% NFC का अवार्ड बढ़ा, दूसरे सूबों को कम करके बलूचिस्तान को दिया। और फिर उसमें ये कंडीशन है कि जी अगर टैक्स कलेक्शन पूरे पाकिस्तान में कम होगी तो बाकी सूबों पे कट लगेगा, लेकिन बलूचिस्तान पे नहीं लगेगा। 5000 नौकरियां बलूचिस्तान पैकेज के तहत दी। 120 अरब रुपए जो NFC के अलावा हैं, जो आपने सुना होगा नवाब बुगटी साहब भी कहते रहे कि जी हमारे गैस डेवलपमेंट सरचार्ज है, वो इन एडिशन टू NFC वो 120 अरब मिले। 17 जब हम उस वक्त नई गवर्नमेंट बनी तो 17 अरब रुपए स्टेट बैंक का और ड्राफ्ट था, वो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लिया। मौलाना वासे साहब को पता है, बैठे हैं ना यहाँ, तो इतना कुछ किया बलूचिस्तान के लिए। और 100 डैम्स का जो प्रोजेक्ट है वो भी उस ज़माने में शुरू हुआ जो अभी तक चल रहा है। विंदर डैम जरदारी साहब खुद आए थे ग्राउंड ब्रेकिंग करने के लिए, जो 13 अरब का काम चल रहा है। तो बहुत बलूचिस्तान के लिए किया। अब हमने वहाँ सही खर्च नहीं किया, उसका तो ज़िम्मेदार न मरकज़ है न जरदारी साहब है, वो तो फिर हम अपने आप को देखें। और एक साथ बात बताता चलूँ कि मैंने डिमांड कोई नहीं रखी है जरदारी साहब से, न अंदर कमरे में न आपके सामने, कोई डिमांड नहीं है। और डिमांड रख कर
कोई मार नहीं खानी है मैंने जरदारी साहब से। रज़ा कर ले फिर आप जो आदाद और शुमार हैं उसमें तो ये हुकूमत गई आपकी आ जाएगी। सवाल मेरा ये है कि जैसे ही मुत्तहिदा अपोजिशन की हुकूमत आएगी तो मियां नवाज शरीफ कितने अरसे तक वापस पाकिस्तान आ सकते? ये मियां साहब का फैसला होगा, उसका जमात का फैसला होगा। और हमने जो सबसे पहले काम करना है वो जो धांधली का सिलसिला चल रहा है, जो हमारा खदशा है कि खान साहब आगे जाके 2023 का इलेक्शंस में भी वही धांधली करना चाह रहा था। इलेक्शन कमीशन के पर काट के उनको कमज़ोर करना चाह रहा था। RTS प्लस को EVMs की सूरत में ले आना चाह रहा था। तो हमें मिल बैठ के वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाने पड़ेंगे ताकि आगे जाके हम साफ और शफाफ इलेक्शंस कर सके और अवाम के नुमाइंदे पर मुल्क के मसाइल हल कर सके। सवाल ये है कि जो तहरीक एतमाद है इसमें आपको भी इल्म है कि एक वोट इंतहाई अहम है और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं वो सबके सामने है, लेकिन साथ ही वफाक की हुकूमत ने ये भी ऐलान किया है कि आपके जो MNA हैं वो जैसे ही दुबई से पहुंचेंगे तो उनका नाम एक ECL में डालने की मंजूरी दी गई है, बल्कि साथ साथ उन्हें गिरफ्तार करके सिंध पुलिस के हवाले किया जाएगा। तो आपको क्या खदशात हैं कि आपके वोट को रोकने के लिए क्या वफाकी हुकूमत की जानिब से पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू होगा? हाँ, जो सबसे पहले स्पीकर साहब की जिम्मेदारी है कि वो अली वजीर का प्रोडक्शन ऑर्डर जो हमने जमा किया वो अली वजीर साहब को प्रोडक्शन ऑर्डर के मुताबिक सेशन के लिए बुलाया जाए, और जहां हमारा मेंबर जिसने खुद बेल लिया है, और बेल हर किसी का हक है, अगर आला अदलिया ने किसी को बेल दिया है और वफाकी वजीर आके धमकियां दे रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो फिर आई एक्सपेक्ट कि द कोर्ट्स will take contempt action against those ministers and those government officials who are threatening to go against the decision of the court. मगर हमारे numbers पूरे हैं. We have the united opposition have all the numbers and more that they need to defeat Imran Khan in the no confidence. मैंने कल भी कहा, मैं आज भी रिपीट कर रहा हूँ, हम बोनस में जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर खान साहब का हिम्मत है तो वो इस वोट से भागेगा नहीं। अगर हिम्मत है तो पहला दिन पे वो वोट करा देगा। अगर बुज़दिल है तो भाग जाएगा, मगर इतना नहीं भाग सकता। मैक्सिमम वो 7 दिन ये प्रोसेस को खींच सकता है। तो ये इमरान का आखिरी हफ्ता है, वो जो भी कोशिश करे, जो भी धमकी दे, कामयाबी यूनाइटेड ऑपोजिशन का होगा। किसी को इजाजत नहीं होगा कि वो धांधली करे, और जो भी अब रवाया अपनाया जाएगा हुकूमत का, वजीरों का, ब्यूरोक्रेसी का, उनको याद रखना चाहिए कि उनका भी आखिरी ही हफ्ता है। थैंक यू। हुकूमत ये दावा कर रही है कि 10 से 12 लोग पीपल्स पार्टी के अदम एतमाद वाले से बीमार हो जाएंगे। एक तो ये बताएं कि कौन से लोग जो बीमार हो जाएंगे पीपल्स पार्टी के। दूसरा सवाल ये कि क्या एस्टेब्लिशमेंट अभी तक न्यूट्रल है? जो गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि काफ भी उधर चली गई और जाके उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम आपके साथ हैं, तो क्या समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट अभी तक न्यूट्रल है? मेरी उम्मीद है और मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। बाकी सियासत खेलना सबका काम है, उनकी थोड़ी सी तंग नजरी है। फरज राई साहब की समझते हैं कि उनको वो बना सकते हैं। मेरी नज़र में वो PTI उनको बना नहीं सकती, वो वोट्स नहीं है उनके पास पंजाब असेंबली में। और जहाँ तक ये दूसरे लवाजमात हैं, ये तो होता रहता है, इस तरह तो होता है, इस तरह के काम रात हो जाए। जब से आप एक्टिव हुए हैं गवर्नर
सिंध ने एक सिग्नल दिया कि प्राइम मिनिस्टर अगर मुझे इशारा करेगा तो मैं सिंध में विद इन नो टाइम, विद इन 30 सेकेंड्स मैं गवर्नर राज लगा दूंगा। लगा के दिखाए, कल नहीं आज लगा के दिखाए, हिम्मत है तो करो। थैंक यू।